Good morning, students. In the previous video we have started the last chapter, that is probability. So let us move ahead and do the first exercise of this chapter. This is the first question. Given that E and F are events such that probability of E is 0.6, probability of F is 0.3 and probability of E intersection F is 0.2, find conditional probability of E given F and the probability of F given E. Now probability of E given F is given by probability E intersection F divided by probability F, and this we are given 0.2 and probability of F is 0.3, so divide the two, we get 2 by 3. Probability of F given E is probability of F intersection E divided by probability of E, that is 0.2 divided by 0.6, so after simplification we get 1 by 3. Next one, if probability of A is 0.8, probability of B is 0.5 and probability of B given A equal to 0.4, we have to find these three parts. First of all, we have to find probability A intersection B, and we are given probability B given A, so we will use the formula for the conditional probability, and probability B given A means probability of B intersection A divided by probability of A is 0.4. Probability of A is given 0.8 and B intersection A can be written as A intersection B. So from here we get probability A intersection B is equal to 0.32 after cross multiplying. Probability of A given B is probability of A intersection B divided by probability of B. Put the values of the two, 0.32 divided by 0.5. So after doing the simplification we get 0.64. Next one is we have to find probability of A union B. Probability A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So put the values of the three terms and after doing calculation we get 0.98. Next is determine probability of E given F. In this question, a coin is tossed 3 times where E is head on third toss and F is head on first 2 tosses. We have to find probability of E given F. So first of all we have to write what is E and what is F here and find their probabilities. Here the sample space will be HHH, HHT, STH, THH, HTT, THT, TTH and TTT. It will have 8 elements. Now head on third toss, तो इसमें से वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें थर्ड टॉस में हेड आ रहा है. सो HHH, HTH, THH and TTH will be there. It will have 4 elements. F is head on first 2 tosses, तो जिसमें फर्स्ट 2 हमारे हेड आ रहे हैं वो हम कंसिडर करेंगे. सो इट इज HHH, HHT. Now here the number of elements is 2. E intersection F is having only one element, HHH. So the number of elements in this case is 1. So probability of E क्या होगा? Number of elements in E divided by total elements in the sample space. So it is 4 by 8 means 1 by 2. And probability of F is number of elements in F divided by number of elements in sample space, that is 2 by 8, 1 by 4. Similarly we can write the probability of E intersection F. एक ही element है इसमें, so 1 by total elements in sample space में 8 थे. Now probability E given F is probability E intersection F divided by probability F. So it is 1 by 8 divided by 1 by 4.
so 1/2. Next part question is E is having at least 2 head. एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 तो आने ही चाहिए हेड, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मीन्स मैक्सिमम तो 3 ही हो सकते हैं. तो 2 या 3 हेड वाले केसेस हम कंसीडर करेंगे इसमें. सो वी गेट HHH, HHT, HTH and THH. Here the number of elements is 4. Now F is at most 2 head. At most 2 head मतलब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, बस 2 तक हो सकते हैं, या तो एक भी हेड ना हो, 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड वाले केसेस लेंगे. तो केवल वही केस हट जाएगा इसमें से, सैम्पल स्पेस में से, जिसमें तीनों हेड आ रहे हैं. सो HHH हमने हटा के बाकी 7 एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे. नाउ probability of E intersection F is having 3 elements, HHT, HTH and THH. So probability of E is 4/8. 4 थे E में और टोटल एलिमेंट्स 8 है हमारे पास सैम्पल पॉइंट में. probability of F में 7 एलिमेंट्स थे, so 7/8. then probability E intersection F is number of elements in E intersection F, जो 3 है हमारे पास, और टोटल सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं, 8, so 3/8. Now probability E given F is probability E intersection F divided by probability F, so we get 3/8 divided by 7/8, so it is 3/7. Next question, a die is thrown 3 times and E is 4 appears on the third toss. F is 6 and 5 appear on respectively on first 2 tosses. तो जब डाई आप थ्रो करेंगे तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे. जब आपने फर्स्ट टाइम थ्रो किया तो आपके पास 6 पॉसिबिलिटी हैं. सेकेंड टाइम भी 6 पॉसिबिलिटी है, 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. थर्ड टाइम जब आप डाई थ्रो करेंगे तब भी आपके पास 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. इसका मतलब 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स से अगर आपको देखना है कि जब तीनों डाई को आप 3 बार थ्रो करेंगे टोटल कितने आपके पास पॉइंट्स बनेंगे, मतलब कितने केसेस बनेंगे. सो इट विल बी 6 × 6 × 6, दैट इज 216 पॉइंट्स. सो सैम्पल स्पेस में हमारे 216 पॉइंट्स होंगे. नाउ ई है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस. तो हमारे पास इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि थर्ड टॉस में तो 4 है. अब फर्स्ट 2 टॉसेस में हमारे पास 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. तो सपोज हमने पहला नंबर हमने 1 फिक्स कर दिया कि फर्स्ट टॉस में 1 आ रहा है, तो सेकंड टॉस में मतलब हमारे पास 1 से 6 कुछ भी आ सकता है. तो सेकंड प्लेस हमारी चेंज हो जाएगी 1 से पहले, फिर 2 से, इस तरह से 6 से. अब हम और थर्ड प्लेस पे तो 4 आ ही रहा है हमारा. अब हम फर्स्ट पोजीशन में चेंज कर देते हैं. सपोज हम मानते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे जब आपने डाई को टॉस करा तो फर्स्ट टॉस में 2 आया. अब फर्स्ट टॉस में 2 आया तो सेकंड टॉस में भी दोबारा से हमारे पास 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. तो इसीलिए सेकंड प्लेस पे फर्स्ट को फिक्स कर दिया 2 और लास्ट भी फिक्स है 4. तो सेकंड टॉस में हमारे पास 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. तो हम यहाँ पे से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है. इसी तरह से फिर हम अगला केस लेंगे कि अब हमारे पास फर्स्ट टॉस में सपोज 3 आया, लास्ट में तो 4 आ ही रहा है. तो सेकंड टॉस में हमारे पास 1 से 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है अगेन. तो हम 3 1 4 हो सकता है, 3 2 4 हो सकता है, 3 6 4. इस तरह से हमारे ये कहाँ तक जाएगा कि फर्स्ट टॉस में 6 आ रहा है तो अगेन सेकेंड टॉस में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और अप टू 6. तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे जो इस ई को फेवर करेंगे, इस ई सेट को बिलोंग करेंगे. नाउ एफ क्या था, 6 and 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस. मतलब फर्स्ट टॉस में 6 आए, सेकेंड में 5. तो फर्स्ट और सेकेंड प्लेस फिक्स हो गए 6 और 5. तो इसका मतलब थर्ड प्लेस पे 1 से 6 कुछ भी नंबर आ सकता है. तो हमने ये केसेस बना दिए, एक बार 1 फिर 2 3 अप टू 6. तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट आएगा 6 5 और 4 वाला.
क्योंकि लास्ट प्लेस यहाँ 4 फिक्स है, यहाँ 6 प्लेस फिक्स है, तो कॉमन क्या होगा, केवल एक 6, 5, 4 वाला एलिमेंट हमारे पास कॉमन है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज 6 by 216, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन f 1 by 216 हो जाएगा. So probability E given f will be probability E intersection f divided by probability f. So it is 1 by 6. Next one. A fair die is rolled. Consider event E equal 1, 3, 5, f 2, 3 and g 2, 3, 4, 5. Find probability E union f given g and probability E intersection f given g. When a fair die is rolled, we have 6 points in the sample space, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here E union F will be 3 only. E union F is 3, common element 3 है. And E union F intersection G क्या होगा, इसका मतलब 1, 2, 3, 5, ये intersection 2, 3, 4, 5, तो 2 और 3 और 5 ये हमारा आ जाए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G विल बी 3 एंड टोटल पॉइंट्स थे सैम्पल स्पेस में 6, तो 3 by 6. एंड E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G मीन्स ओनली 3 is there, so its probability will be 1 upon 6. Now probability E union F intersection G is probability of E union F intersection G using the formula for the conditional probability divided by probability of G. So put the values, we get 3 by 4. Similarly, we can find probability E intersection F given G as E intersection F intersection G divided by probability of G. Put the values of both, we get 1 by 4. Next question. An instructor has a question bank consisting of 300 easy true-false questions, 200 difficult true-false questions and 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. एक इंस्ट्रक्टर के पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 300 आसान ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, 500 आसान मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? अगर हमें ये दिया है कि जो क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करा है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इजी वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हमारे पास 1400. तो द सैम्पल स्पेस में 1400 पॉइंट्स हैं. Suppose E is selected question is easy and F is selected question is a multiple choice question. It means we have to find probability of E given F. So for that we require E intersection F. तो in intersection F का मतलब हो गया कि easy multiple choice question. So number of elements इसमें कितने हो जाएंगे, 500 हमारे पास easy multiple choice questions थे और F में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज 900. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F विल बी 500 डिवाइडेड बाय 1400, क्योंकि 500 E में है और सैम्पल स्पेस में टोटल 1400 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ F, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, दैट इज 900 अपॉन 1400. Now we will find the conditional probability of E given F as probability E intersection F divided by probability of F. Put the values and then we get 5 by 9. Next is, given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event. The sum of the numbers on the dice is 4. ये दिया हुआ है कि जब दो नंबर्स हम थ्रो कर रहे हैं, दो डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो उन पे जो आने वाले नंबर हैं वो दोनों डिफरेंट होंगे. तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम 4 हो. नाउ
the sample space when the two dice are thrown will have ordered pairs xy, जिसमें xy इस सेट को बिलोंग कर सकता है 1 से 6, मतलब x और y की जगह 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट्स हो गए 36, क्योंकि यहाँ 6 चॉइसेस हैं आपके पास फिल करने के लिए 1 से 6, और यहाँ भी 6 है। सो 36 चॉइस टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगी। एंड ई इज सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई इज 4 सपोज। सो उसमें कौन कौन से हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे 1 3 3 1 और 2 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी 3 by 36, 3 by 36, and f is numbers appearing on the dice are different। तो टोटल 36 में से 6 ऐसे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें डबलेट आता है, डबलेट में सेम नंबर आता है 1 1 2 2। तो इसलिए एफ में कितने एलिमेंट्स हो गए, सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से ये 6 माइनस हो जाएंगे, सो वी विल गेट 30। सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 30 by 36। नाउ प्रोबेबिलिटी E intersection F is having only 2 elements 1 3 and 3 1. So the probability of E intersection F is 236. So probability of E given F is probability E intersection F divided by probability of F. Put the values here and we get 1 by 15. Last question. Consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throwing the die again. And if any other number comes up, toss a coin. आपने डाई थ्रो करा, अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो उसी डाई को दोबारा थ्रो करना है, और अगर कोई और नंबर आ रहा है तो हमें कॉइन टॉस करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि द कॉइन शोज अ टेल, और जब हमें ये दिया है कि एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3। तो यहाँ पर जो सैम्पल स्पेस हमारा बनेगा उसमें अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो हम डाई को ही दोबारा थ्रो कर रहे हैं। सो और अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो डाई थ्रो होगा, अदरवाइज कॉइन। तो अगर 1 आ रहा है तो कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो 1 के साथ एच भी आ सकता है और 1 के साथ टी भी। इसी तरह से 2 आ रहा है तो उसके तब भी हम कॉइन टॉस करेंगे, तो 2 के साथ एच और टी बन सकता है। 3 आ रहा है तो 3 के साथ हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, इसलिए 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पॉसिबिलिटी है। 4 आने पर फिर हम कॉइन टॉस करेंगे, सो 4H 4T बनेगा। 5 के साथ भी हम कॉइन टॉस करेंगे तो 5H 5T बन सकता है। लेकिन 6 क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो 6 जब हम आएगा तो हमें डाई को ही दोबारा थ्रो करना है, तो 6 के साथ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 1 के साथ 2 अप टू 6 कोई भी नंबर आ सकता है। सो द टोटल पॉइंट्स हो गए हमारे सैम्पल स्पेस में 20। नाउ ई इज द कॉइन शोज अ टेल, तो वो केसेस कंसिडर कर लेंगे जहाँ पर हमारा कॉइन में टेल आ रहा है। सो 1T 2T 4T 5T 4 पॉइंट्स हो गए इसमें। और एफ है एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, तो वो वाले केसेस हम कंसिडर करेंगे जिसमें किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में 3 आ रहा है। सो यहाँ दोनों में आ रहा हो 3, सो वी हैव 7 पॉइंट्स इन इट। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारी 0/20 0 हो जाएगी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एफ, दैट इज 0 by this प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, it is 0. That's all for today. Thank you.